میر رضا کیس میں اہم پیش رفت، تفتیشی ٹیم نے مزید 2 ممبران کا اضافہ کر دیا۔ ڈی ایس پی سراج الدین اور انسپکٹر محمد علی تفتیشی ٹیم میں شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، میر رضا کیس میں اہم پیش رفت، تفتیشی ٹیم میں مزید 2 ممبران کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی سراج الدین اور انسپکٹر محمد علی تفتیشی ٹیم میں شامل ہیں۔ میر رضا کیس میں اہم پیش رفت، میر رضا کیس کی تفتیشی ٹیم میں مزید 2 ممبران کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی سراج الدین اور انسپکٹر محمد علی تفتیشی ٹیم میں شامل 2 ارکان کے اضافے کے بعد میر رضا کیس کی تفتیشی ٹیم 7 رکنی ہو گئی ہے۔ سٹی 21 نے گزشتہ روز ذرائع کی جانب سے دی گئی خبر نشر کی تھی۔ اجلاس میں میر رضا کے والدین کی جانب سے تفتیشی کمیٹی میں مزید ارکان شامل کرنے کی درخواست سامنے آئی تھی۔ سٹی 21 نے تفتیشی ٹیم میں 2 نئے ارکان کی شمولیت کا نوٹیفیکیشن حاصل کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، میر رضا کیس میں اہم پیش رفت، تفتیشی ٹیم میں مزید 2 ممبران کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈی ایس پی سراج الدین اور انسپکٹر محمد علی تفتیشی ٹیم میں شامل ہیں۔ میر رضا کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ میر رضا کیس کی تفتیشی ٹیم میں مزید 2 ممبران کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں درے شہوار سے۔ درے، اس معاملے پر اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر ہم اپنی گزشتہ روز کی کارروائی خبر پر نظر ڈالیں تو سٹی 21 نے گزشتہ روز ہی یہ خبر جو ہے بریک کر دی تھی، جس میں اجلاس میں میر رضا کے والدین کی جانب سے 2 افسران کے نام شامل کرنے کے حوالے سے ہم نے بتایا تھا۔ تاہم آج جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن موصول ہوا ہے، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو میر رضا کیس کی تفتیشی ٹیم میں مزید 2 ممبران میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس میں ڈی ایس پی سراج الدین اور انسپکٹر محمد علی تفتیشی ٹیم میں شامل ہے، جس میں 2 ارکان کے اضافے کے بعد میر رضا کیس کی تفتیشی ٹیم 7 رکنی جو ہے بینچ پر مبنی ہوگی، جس میں جو ہے اجلاس میں میر رضا کے والدین کی جانب سے تفتیشی ٹیم میں مزید ارکان شامل کرنے کے لیے درخواست دی گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ انہیں کی جانب سے 2 افسران کے نام سامنے دیے گئے تھے۔ اچھا جی، سٹی 21 نے تفتیشی ٹیم کے 2 نئے ارکان کو نوٹیفیکیشن حاصل کر لیا۔ جی درے شہوار اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ۔ کراچی میں سفارتی برادری کی خوبصورت شام سجائی گئی، جس میں چین سمیت مختلف ممالک کے سفارتی نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں زبیر راشد سے۔ زبیر، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں شاندار سفارتی شام، شعبے شخصیات نے کی بھی بھرپور شرکت، اور چین کے کام مقام کونسل جنرل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کونسل جنرل چائنا سر، تھینک یو سو مچ سر، what would you like to say regarding this beautiful evening is going on? I'm very glad to attend today's ceremony and event. And China and Morocco's relations had long history. In 2016, the leaders of the 2 countries announced the establishment of the strategic partners. During the last 10 years, the countries had adhered to the equality, the mutual benefit, and the win-win outcome cooperation. We are willing to enhance the practical cooperation, expand the people-to-people exchange, and also all the levels exchange, and to enhance our friendship and cooperation to benefit the 2 peoples. Yeah, and also for the China-Pakistan relations, I want to say a few words. And China and Pakistan are always their strategic partner. That the 2 countries' relations always stand at the forefront of the times. That relations advance with the times. That's as time-tested and deep-rooted heart, the friendship that we are very glad, and we will make joint effort to enhance our friendship forever. Thank you. Enhance our friendship forever. Thank you so much, Acting Consul General China, to being with us. اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح شہر قائد میں بھی جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی کے اسکول آف مڈ وائفری میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں ایم ایس ڈاکٹر علی مرتضیٰ اور پرنسپل مونا جوائس صادق نے کیک کاٹا ہے اور ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیے۔ ہلالی پرچموں سے سجا اسکول آف مڈ وائفری، ملی نغموں کی گونج اور جشن آزادی کا جوش۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں محکمہ صحت کے اسکول آف مڈ وائفری میں بھی یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر علی مرتضیٰ، پرنسپل مونا جوائس صادق، ڈاکٹر بشیر اور شاہ زیب سمیت
दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एमएस और प्रिंसिपल ने केक काटा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची स्कूल ऑफ मिडवाइफरी में भी हम जो है जश्न आज़ादी का प्रोग्राम मना रहे हैं बड़े जोशो खरोश से, और ये हमारे सीनियर डायरेक्टर KMC की हिदायत पर हम ये कर रहे हैं पूरा प्रोग्राम। तकरीब में स्कूल ऑफ मिडवाइफरी की तलबात ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। स्कूल को सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से खूबसूरती से सजाया गया था, जबकि तालबात ने मिली नगमों और तकरीरी मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। तालबात का कहना था कि वो मरीजों की खिदमत के साथ अपने वतन का जश्न भी भरपूर जोशो जज्बे से मना रही हैं। उनके लिए यौम आज़ादी मुल्क से मोहब्बत और खिदमत के अज़म को मज़ीद मजबूत करने का मौका है। हम मरीजों की खिदमत के साथ साथ अपने मुल्क का जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, और हम अपने हॉस्पिटल में जश्न मना, हमारी मैडम साथ हैं हमारे, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की, स्कूल की, कॉलेज की लड़कियों की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जहाँ हम मरीजों की खिदमत करते हैं वहाँ हम आज 14 अगस्त की खुशियाँ मना रहे हैं। वहाँ आज हम लोगों ने केक भी मंगवाया है और हम सारे स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम अपने MS के भी शुक्रगुजार हैं, वो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। दूसरी जानिब अस्पताल के MS डॉक्टर अली मुर्तज़ा की हिदायत पर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को भी कौमी परचमों और झंडियों से सजा दिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक आइंदा चंद रोज में अस्पताल में एक शानदार तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। इब्राहिम रिंद, सिटी 21। जहां इल्म की रोशनी बिखरती है, वहां सब्ज़े और खूबसूरती के रंग भी माहौल को ज़िंदगी बख्शते हैं। जामिया कराची के नए फार्मेसी ब्लॉक में क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव का इनेकाद किया गया, जहां तलबा ने सफाई और शजरकाही के साथ पत्थरों पर रंग बिखेर कर माहौल को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। मुहिम का मकसद सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि एक साफ, सरसब्ज और खूबसूरत जामिया का पैगाम आम करना भी था। आपको बता रहे हैं, जहां इल्म की रोशनी बिखरती है, वहां सब्ज़े और खूबसूरती के रंग भी माहौल को ज़िंदगी बख्शते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सफाई के साथ सब्जे का लम्स, पत्थरों पर रंगों की बहार। जामिया कराची के नए फार्मेसी ब्लॉक में क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव का इनेकाद हुआ, जहां तलबा ने सफाई, शजरकारी और खूबसूरती के रंग एक साथ बखेर दिए। किसी ने हाथ में पौधा थामा तो किसी ने सफाई का बेड़ा उठाया तो किसी ने बेरंग रॉक्स पर अपनी तख्लीकी सलाहियतों के रंग सजाकर उन्हें नई शक्ल दे दी। मुहिम के दौरान तलबा ने नए फार्मेसी ब्लॉक के अतराफ सफाई की और माहौल को सरसब्ज बनाने के लिए पौधे भी लगाए। तलबा का कहना था कि साफ और सरसब्ज माहौल सिर्फ खूबसूरती नहीं बढ़ाता बल्कि सेहतमंद माशरे की बुनियाद भी बनता है। हम प्लांट्स लगा रहे हैं जिसमें हमारे पास 90+ प्लांट्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास रॉक पेंटिंग एक्टिविटी है जिसमें हम बेसिकली पेंट करेंगे रॉक्स को, और एज अ डेकोरेशन जो है वो हम अपने प्लांट्स के साथ लगाएंगे प्लांटिंग करते हुए। इसके अलावा हमारे पास रिफ्रेशमेंट्स हैं बच्चों के लिए, ताकि जो है वो अच्छे से एंजॉय कर सकें गर्मी में। ये सब है। हम ना हर साल ये वाली ड्राइव प्लांटेशन ड्राइव करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट है, हमें ये बहुत इंकरेज करती है हमारी टीचर्स कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करें ताकि बच्चे भी इस चीज़ों को प्रमोट हों और हमारी एनवायरमेंटल हेल्थ पे भी थोड़ा सा काम हो इस चीज़ के लिए। फ्री मैन ऑफ पाकिस्तान शहरोज सिराज का कहना था कि क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव का मकसद सफाई, शजरकारी और खूबसूरती तीनों पहलुओं पर बेक वक्त काम करना है। तलबा ने भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और रॉक्स पर पेंटिंग के जरिए नए फार्मेसी ब्लॉक की खूबसूरती में भी इजाफा किया। यहाँ पर हम इस क्लीन एंड ग्रीन दोनों एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर सफाई भी करेंगे हम और साथ साथ प्लांटेशन एक्टिविटी भी करेंगे, और उसके साथ साथ इसको खूबसूरत बनाने के लिए रॉक्स देख रहे हैं आप, इसको कलरफुल करके इस क्यारियों में रखेंगे ताकि ये जो हमारा डिपार्टमेंट है हरा भरा भी हो जाए और खूबसूरत भी हो जाए। और इसको सेलिब्रेट करने का मकसद ये है कि जश्न आज़ादी को मुख्तलिफ तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। कोई झंडे लगा के करता है, कोई बाइक का सलेंसर निकाल के करता है, पर हमने कोशिश किया इस दफ़ा हम इसको क्लीन एंड ग्रीन करके करें, सेलिब्रेट करें। दरख्त लगाने से लेकर सफाई और किसी जगह को खूबसूरत बनाने तक छोटी छोटी कोशिशें ही बड़े मुस्बत नताइज की बुनियाद बनती हैं। जामिया कराची के नए फार्मेसी ब्लॉक में होने वाली ये क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव भी साफ, सरसब्ज और खूबसूरत कराची की जानिब एक खूबसूरत कदम है। लियाकताबाद टाउन की UC 5 की भी किस्मत जाग उठी। जश्न आज़ादी की खुशी में लियाकताबाद नंबर 4 में शजरकारी मुहिम जारी है। बरसों से मौजूद कचरे के ढेरों को ख़त्म करके माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं। डायरेक्टर पार्क रेहान हमदानी का कहना है कि इलाके से कचरा साफ करके हरियाली बहाल की जा रही है। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा।
जी बिल्कुल, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी को हर तरीके से हर इदारा मुनफरद अंदाज से मनाने की कोशिश कर रहा है। लियाकताबाद टाउन की अगर बात की जाए तो मुनफरद इक़दाम सामने आया है और जश्न आज़ादी के हवाले से बड़े पैमाने पर जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये लियाकताबाद नंबर 4 कहलाता है और UC 5 है लियाकताबाद टाउन की, और ये वो मकाम है जहाँ जा बजा कचरे के अंबार और ताफ़ुन हुआ करता था, लेकिन लियाकताबाद टाउन के महकमा बागात की काविशों के नतीजे में अब यहाँ पर जो है ट्री प्लांटेशन के काम का आगाज़ कर दिया गया है। और इस सिलसिले में मज़ीद क्या मालूमात हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर पार्क हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा ट्री प्लांटेशन के हवाले से ख्याल क्यों आया और यहाँ पर क्या क्या होगा? ये असल में जो है रिजवान भाई, ये जो सराउंडिंग है स्कूल की, ये तकरीबन जो है 2000 जो है रनिंग फीट है। तो ये यहाँ पे आपको पता होगा कि ये कचरे के सारे यहाँ पे जगह जगह वो पॉइंट बने हुए थे, तो उसको हमने क्लियर करवाया है। अब यहाँ पे हम ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं। अब यहाँ पे आज प्लांटेशन कराई जाएगी यहाँ पे, जैसे कि हमने पिछली 2 दफ़ा हम करा चुके हैं डाकखाने पे और वहाँ पे आपका अल्ताफ़ हुसैन बरेलवी रोड पे। अब तीसरा जो है ना यहाँ पे हमने लिए इस जगह को। और रेहान साहब, ये जगह आपने रेनोवेट तो करना शुरू कर दी, लेकिन क्या गारंटी है कि यहाँ पे दोबारा जो है कचरा नहीं आएगा? और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से क्या कोऑर्डिनेशन है आपकी, और जो आप पौधे लगाएंगे उनको तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने के लिए क्या काम होगा? देखें, उसके लिए हमने ये करा है कि यहाँ पानी का इंतजाम करा है और यहाँ बाकायदा जो है ना, देखें आप आगे हाइडेंट वगैरह लगा दिए हैं और वहाँ से जो है ना मोटर से पानी जो है, जो हमारी बोर है उससे हम लेंगे। बिल्कुल, ये इलाका जो कि माजी में गंदगी और ग़िलाज़त की आमाजगा बना हुआ था, मसरूफ़ तरीन इंतहाई इलाका है। कमर्शियल एक्टिविटी भी यहाँ पर होती हैं और रेजिडेंशल एरिया भी है। इसको एक नया लुक देने की कोशिश की जा रही है। लियाकताबाद टाउन इंतज़ामिया की जानिब से हरियाली की जा रही है, लेकिन आवाम से भी मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस सारे अमल को जो है उसमें साथ दें और यहाँ पर मज़ीद गंदगी ना फैलाएँ और इस इलाके को साफ़ सुथरा रखने में और हरा भरा रखने में इंतज़ामिया से ताउन करें। जी नाज़रीन, यौम आज़ादी पर मुल्क भर के बैंक और मालियाती इदारे बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने 14 अगस्त 2026 को बैंक तातील का ऐलान कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से यौम आज़ादी के मौका पर 14 अगस्त 2026 को आम तातील का ऐलान किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक यौम आज़ादी के मौका पर तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे 14 अगस्त को बंद रहेंगे। इस रोज़ बैंकों और मालियाती इदारों में मामूल की बैंकारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। वफाकी हुकूमत के साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम हो गए। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अमान ने कहा है कि मुतालिबात की मंजूरी तक हमारी पुरअमन हड़ताल जारी रहेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की किसी यकीन दहानी में नहीं आएंगे। बगैर नोटिफिकेशन हड़ताल ख़त्म नहीं होगी। गवर्नमेंट के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो एक कमेटी तश्कील दी थी हमसे मुज़ाकरात के लिए, मिनिस्टर कम्युनिकेशन अब्दुल हलीम खान की सरबराही में, जिसमें पोर्ट एंड शिपिंग, जिसमें मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर फाइनेंस और दीगर मिनिस्ट्रियों के नुमाइंदे जो हैं उसमें शामिल थे। इसमें जो भी कल से आज तक जो हमारी मुज़ाकरात हुई है उस पर टूल टैक्स पर भी बात हुई, विदहोल्डिंग टैक्स पर भी बात हुई, डेली बेसिस पे डीजल पेट्रोल की कीमतों में जो फेडरल गवर्नमेंट का जो तब्दीली का फैसला है उस पर भी बात की, और जो डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी की हम डिमांड कर रहे हैं उस पर भी बात हुई है। तो कल भी 5 घंटे मुज़ाकरात हुई है और आज भी सुबह मीटिंग 12 बजे से अब 5 बजे मीटिंग खत्म हुई है। तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी जो हमारे मुज़ाकरात हुए वो भी नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान भर के तमाम ट्रांसपोर्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पुरअमन हड़ताल जो है तमाम मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मलिक खुदाबख्श का कहना है कि डीलर्स के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत से मुतालबात मनवाने के लिए बड़ा फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक खुदाबख्श ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मुल्क भर के डीलर्स ने इजलास में शिरकत की और मुतफ़क़ा तौर पर अपने मुतालबात के हक में फैसला किया है। हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए तो हम कारोबार जारी नहीं रख सकेंगे। आज ये फाइनल हुआ, कमेटी ने ये पास किया कि गवर्नमेंट को 72 घंटे का नोटिस दें और उस 72 घंटे के भी अगर वो नहीं सुनते और हमारा फैसला नहीं करते, जो हमारे 5 मुतालबात हैं जो आपको पहले भी गुज़ार कर चुके हैं, अभी हमने प्रेस रिलीज़ में भी लिख दिया है। पहला है 24 आवर्स जो प्राइस चेंजिंग है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के नायब चेयरमैन
तारिक हसन और अनवर इकबाल ने पेट्रोल पर मार्जिन बढ़ाकर 8% करने और यौमिया बुनियादों पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने के अमल को ख़त्म करने समेत दीगर मुतालबात किए। रोज़मर्रा के जो बाइकर्स हैं, स्कूटर चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, तनख्वाहदार तबका, ये सब उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सेलें भी और मज़ीद नीचे आ गई है, तो पंप चलाना और मुश्किल हो गया। ये 15 तारीख की सुबह 6 बजे से हम अपना कारोबार बंद कर देंगे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, जब तक कि हमारे ये जो भी जायज़ मुतालबात हमने पेश किए हैं, जो पिछले 15 दिन पहले भी दिए थे, वो नहीं हुए, तो हम अपना सारा कुछ कारोबार बंद करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने वाज़ेह किया है कि मुतालबात की मंजूरी तक कारोबार की बंदिश का फैसला वापस नहीं लिया जाएगा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं मुल्कगीर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल पर कराची चैम्बर भी मैदान में आ गया है। सदर के CCI ने हुकूमत से फौरी मुदाखलत और ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात का मुतालिबा कर दिया है। रेहान हनीफ का कहना है कि तवील हड़ताल से सनद, बरामदात और कौमी सप्लाई चेन शदीद मुतासर हो सकती है। ट्रांसपोर्ट का शोबा मुल्क की मईशत और सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर से भी कौमी मुफाद में हड़ताल ख़त्म करने की अपील करते हुए हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। इस वक्त मुल्क में ट्रांसपोर्ट की हड़ताल जारी है। मेरी वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों से गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर तमाम एसोसिएशन से रब्ता करें, इनको इंगेज करें और इनके जायज़ मसाइल को हल करें ताकि ये ट्रांसपोर्ट की हड़ताल ख़त्म हो सके। आज से चंद माह पहले भी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई थी जिससे मुल्क को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट्स का बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और हमारे एक्सपोर्ट्स की कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो सकी। तो मेरी इसीलिए अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर इनको इंगेज किया जाए। दूसरी जानिब मैं अपने ट्रांसपोर्टर भाइयों से भी अपील करना चाहूँगा कि आपकी हड़ताल से मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। खुदारा अपना दिल बड़ा करें और मुल्क और कौम की खातिर इस हड़ताल को ख़त्म करें, और यकीनी तौर पर आपसे हुकूमत भी बातचीत करेगी और हम एक मीडिएटर का रोल भी प्ले करने को तैयार हैं। हम सब मिल के आपके साथ बैठ के हुकूमत से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जायज़ मुतालबात जो हैं वो माने जाएं।